Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, integers. We are already familiar with the system of whole numbers and the four fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division performed on it. In this chapter, we will extend the system of whole numbers to the system of all integers and will also learn the four fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division on the system. देखिए आपको होल नंबर के सिस्टम के बारे में पहले से ही पता है, आप प्रीवियस क्लास में भी इंटीजर्स के बारे में पढ़ के आए हैं, तो अब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करेंगे इस चैप्टर में. Negative numbers, we know that on adding any two whole numbers, we always get a whole number. Is this true for subtraction as well? Let us examine it. Look at the following examples. देखिए आपको पता है कि जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको आंसर होल नंबर ही मिलता है, लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी पॉसिबल है? चलिए देखते हैं. जैसे आपके पास है, देखिए 37 माइनस 25 12, 37 माइनस 37 0, बट 25 माइनस 37 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका आएगा नेगेटिव में. We observe that in the last case there is no such answer in the system of whole numbers, that is when a bigger whole number is subtracted from a smaller whole number, we cannot get a whole number. Thus, the system of whole numbers is inadequate for subtraction. Therefore, there is a need to enlarge the system of whole numbers to provide an answer to all such questions of subtraction. Let's introduce another kind of number called negative numbers. -1, -2, -3 and so on are negative numbers. देखिए इस केस में आपका आंसर आना था नेगेटिव, तो अब हम क्या बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स के बारे में. Integers. A combined set of negative numbers and whole numbers is called integers. Thus, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 4 are integers. Here, 1, 2, 3, 4, etc. are called positive integers and -1, -2, -3, -4, etc. are called negative integers. 0 is neither positive nor negative. अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें आपके सारे ही होल नंबर्स, आपके नेचुरल नंबर्स और यहाँ तक कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, राइट. अब आपका जो 0 है ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है. Absolute value of an integer. The absolute value of an integer is a numerical value, magnitude of the integer regardless of its sign. It is denoted by the symbol this bar. देखिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है किसी की भी. जैसे देखिए -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 3, 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 9. ओके, रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ईदर 0 और पॉजिटिव. एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की या तो 0 होती है या फिर पॉजिटिव होती है. जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 7 माइनस 9. ओके, 7 माइनस 9 आएगा आंसर 2, और जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2. इसी तरह से 12 माइनस 12 0, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 ही होती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. The corresponding positive and negative integers have the same absolute value. अच्छा, अब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स है उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सेम रहती है. जैसे कि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है, तो पॉजिटिव 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है. Representation of integers on a number line. To represent integers on a number line, we follow the given steps. Draw a straight line, mark point on it and label it as 0. Mark points at equal distances from 0 on both sides of it. Label the points to the right of 0 successively as 1, 2, 3 and the points to the left of 0 successively as -1, -2, -3. Put arrows on each side of the line to show that the line continues indefinitely in both directions. Hence, the line drawn above is called the number line. अब number line में कैसे draw करते हैं? देखिए 0 आपने लिखा, इसके बाद आपने इक्वल मार्क्स मार्क करना है. 0 के राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जबकि 0 के लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे. रिमेंबर दैट देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड नो स्मॉलेस्ट इंटीजर. ना तो कोई सबसे बड़ा इंटीजर होता है ना ही कोई सबसे छोटा इंटीजर होता है. Successor and predecessor. Successor, one more than a given integer is called its successor. So each integer on the number line is a successor of the integer just on the left of it. For example, -3 is the successor of -4, -2 that of -3, -1 that of -2, 0 that of -1 and so on. Successor आपको पता है कि किसी भी इंटीजर से एक ज़्यादा,
ओके तो जो भी इंटीजर नंबर लाइन है वो सक्सेसर है जस्ट उसके जो लेफ्ट में है. प्रीडिसेसर, वन लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर. सो ईच इंटीजर ऑन द नंबर लाइन इज अ प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर जस्ट ऑन द राइट ऑफ इट. प्रीडिसेसर का मतलब क्या है कि गिवन इंटीजर से जस्ट एक का, जैसे कि आपके 0 प्रीडिसेसर है किसका, 1 का, -1 दैट ऑफ 0, -2 दैट ऑफ -1 एंड सो ऑन. चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल. राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ -63. देखिए -63 का सक्सेसर और सक्सेसर आपको निकालना है. सबसे पहले सक्सेसर के लिए 1 प्लस करते हैं, तो +1 करेंगे जब आप इसमें, तो ये आ जाएगा -62, यानी -63 का सक्सेसर इज -62. इसके बाद आप -63 का प्रीडिसेसर निकालेंगे, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर -64. तो 64 आपका क्या है, प्रीडिसेसर -63 का. Ordering of integers. An integer represented to the right of any integer on the number line is greater than the left of any integer and vice versa. Here देखिए आपको एक नंबर लाइन नजर आ रही है. नंबर लाइन में जैसे आपको बताया गया जो राइट साइड है कोई भी इंटीजर वो आपके ग्रेटर होंगे, जबकि जो लेफ्ट साइड है वो आपके स्मॉलर होंगे. Hence we can say that 0 is greater than every negative integer and is less than every positive integer. Every positive integer is greater than every negative integer. तो यहाँ से आपने दो चीज़ें कंक्लूड की. देखिए कि 0 जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनसे ग्रेटर है एंड 0 किसी भी पॉजिटिव नंबर से आपका स्मॉलर है, और इसके अलावा आपके हर पॉजिटिव इंटीजर किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. यूज अप्रोप्रिएट साइन. देखिए -6 और -4 में से कौन सा बड़ा होगा, -4. ओके -9 एंड -9 बोथ आर इक्वल. -8 एंड -10 आपका 10 आपका ग्रेटर होगा. ओके चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ऑल्सो रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन. आपको सबसे पहले तो इंटीजर्स लिखने हैं और उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है. इंटीजर लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -1. देखिए 4 से कम होना चाहिए बट -1 से ग्रेटर होना चाहिए. सो आपका ये क्या हो सकता है, आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3, है ना. और आपको इसे नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है, तो अभी इसे करते हैं. नेक्स्ट है इंटीजर्स लाइन बिटवीन -3 एंड 2. -3 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर है, -2, -1, देन 0, 1. ओके इसी तरह से आपने करना है इंटीजर्स ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन -2. तो -6 से ग्रेटर होंगे -5, -4, -3 एंड लेस देन -2. तो ये आपके यही होंगे. ओके अब आप बाकी जो 2 पार्ट्स से खुद करेंगे. चलिए इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे करेंगे, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की 0, 1, 2, 3, 4. ओके लेफ्ट साइड आपके आएंगे माइनस इंटीजर्स. ओके अब आपको जैसे आपके पास जितने भी नंबर्स आए जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव, आप कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे. अगर 1 है दिस इज 1, -1 है दिस इज -1, 3 है तो दिस इज 3 एंड -3, इसी तरह से -4, इस तरह से आप उन्हें मार्क कर देंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. यूज अप्रोप्रिएट सिंबल. अब इनमें से आपको बताना है विच इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. -3 एंड 7 में से कौन सा ग्रेटर होगा, 7. 0 एंड -24, 0 बड़ा होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि 0 किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है. इसी तरह से -33 एंड -35 में से बड़ा होगा -33. ओके चिल्ड्रन, बाकी आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ. आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 7, 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 14. ओके चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द गिवन इंटीजर्स वी फॉलो द गिवन रूल्स. अगर किसी इंटीजर को प्लस या माइनस करना तो हम कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं. तो चलिए उन रूल्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहले है इफ 2 इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन either both are positive or negative are added, then add their absolute values and assign the common sign they carry to their sum. अगर 2 इंटीजर्स उनका साइन सेम है, यानी कि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में हैं, दोनों नेगेटिव में हैं, तो हमेशा वो प्लस होंगे. और उसके बाद क्या करना है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है और फिर हमने उसमें कॉमन साइन लगाना है. ओके चलिए देखते हैं. सबसे पहले एग्जांपल है आपके पास -4 एंड -6. ओके सो -4 एंड -6. -4 ये भी माइनस में और आपका ये भी माइनस में, दोनों ऐड हो जाएंगे
ऐड होगा 10 एंड उनके कॉमन साइन क्या है माइनस, तो आपका -10 आ जाएगा। नेक्स्ट इज +5 + 7, +5 + 7 आपका 12 आएगा एंड साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। रूल नंबर 2, इफ टू इंटीजर्स हैविंग डिफरेंट साइंस आर एडेड देन फोर्स द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड असाइन द साइन ऑफ द इंटीजर हैविंग ग्रेट एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, दो इंटीजर्स के अगर डिफरेंट साइंस हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का हमें डिफरेंस निकालना है और उसके बाद जिसका ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका हमने साइन लगाना है। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है +7 एंड -3, जब इनको हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बट साइन क्या होगा, देखिए जब हम 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 7 होगा, राइट। जब हम 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो 3 होगा, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3। इनका जो डिफरेंस आया वो आया 4। अब इन दोनों में से एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की बड़ी थी, उसके साथ जो साइन है हमने वो लगाया। नेक्स्ट इज -12 + 5, माइनस करेंगे 12 और 5 को तो 7 आएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, जिस 12 की, और उसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। Third rule is if two integers are being subtracted, then change the integer to be subtracted to its additive inverse and then simply add the two integers. अगर दो integers subtract हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो integers आपका subtract हो रहा है आप उसका क्या करेंगे, उसको additive inverse उसका रखेंगे and then simply दो integers को आप add कर देंगे। चलिए देखते हैं, for example आपका है +3 माइनस +1, तो आपका आ जाएगा +3 प्लस -1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 प्लस। नेक्स्ट इज +5 -15। अब देखिए आपका ये जो नंबर है ये आपका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +15, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। सिमिलरली आपको ये भी ऐसे ही करना है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज -12। आपको दो ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका सम आएगा -12, तो आएगा आपका सम -7 एंड -5। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है -6 एंड -1। बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डिफरेंस आना चाहिए -5, तो देखिए डिफरेंस -5 आएगा, -9 एंड 4, और क्या हो सकता है आपका -7 एंड 2, तो कुछ भी आंसर आपके हो सकते हैं। सम इज 0 अगर सम लेना है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ले लेंगे, जैसे कि +5 एंड -5, +6 एंड -6, तो सम आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट वैल्यूज आपको दी हैं A एंड B की और आपको वेरीफाई करना है। चलिए तो वेरीफाई करते हैं। A माइनस आपके पास है A माइनस B इज इक्वल्स टू A प्लस B, ओके। अब आपके पास A की वैल्यू है और B की वैल्यू दोनों ही आपको गिवन है। A की वैल्यू आपके पास है 16 एंड B की वैल्यू है आपके पास 17। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, दिस वन। A यानी 16 माइनस 17, तो आपका आ जाएगा 16 प्लस 17, और इसको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 33। चलिए अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। A प्लस B यानी 16 प्लस 17, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 33, तो दोनों साइड्स इक्वल है, हैंस आपका ये वेरीफाई हो गया। तो बाकी के क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स -8 का हो जाएगा 8, 47 का हो जाएगा -47, ओके। Properties of addition of integers. Closure property. If A and B are two integers, then A plus B will also be an integer. For example, if -7 and 3 are two integers, then -7 plus 3 is equals to -4 is also an integer. Closure property का मतलब है कि अगर आपके A और B दो integers हैं, then A plus B जो होगा वो भी आपका integer ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है -7 एंड 3, ये दो इंटीजर्स है, जब आप इनको प्लस करेंगे इनका जो आंसर आएगा वो भी आपका इंटीजर ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ A एंड B आर टू इंटीजर्स देन A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। ये आप प्रीवियस क्लास में भी करके आए होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A होता है।
आपको दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे कि -1 एंड -2, तो -4 प्लस -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस -4. Next is associative property. If A, B and C are three integers, then A plus B plus C is equals to, देखिए associative property आपकी A plus B plus C equal होगा A plus B plus C के, इनमें कोई changes नहीं होंगे. तो this is your associative property. Now additive identity. If A is any integer, then A plus 0 is equals to 0. प्लस 0 प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, यानी कि आप किसी भी इंटीजर में 0 प्लस करेंगे वो इंटीजर सेम रहेगा, या फिर आप 0 में वो इंटीजर प्लस करेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा. तो ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. क्लोजर प्रॉपर्टी. अब ये इंटीजर, ये प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन में. Closure property. If A and B are two integers, then A minus B will also be an integer. Closure property क्या है कि अगर आपके दो integers हैं A, B, तो A, B का आप subtraction करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपका एक integer ही होगा. Commutative property is A minus B is not equal to B minus A. कैसे? जैसे आपको दिया गया है, देखिए 6 and -3. तो चलिए पहले इसको solve करते हैं. 6 minus -3, तो 6 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 9. ओके, तो ये साइड तो आपकी 9 आ गई. अब हम राइट हैंड साइड का देखते हैं. B माइनस 6, B है आपका -3 माइनस आपका 6. ओके, तो आपका आंसर आएगा -9. क्या दोनों सेम है? नहीं, एक 9 है तो एक -9 है, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की नहीं होती है. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है आपका, देखिए A माइनस ब्रैकेट B माइनस C इज नॉट इक्वल टू A माइनस B माइनस C. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स की नहीं होती, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में नहीं होती. चलिए एक्सरसाइज करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड. अब आपको इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो भी लिखना है और इनको स्टेटमेंट को करेक्ट करना है. देखिए -7 प्लस -9, यहाँ पे आपका 7 नहीं है तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे. ओके, इसी तरह से -5 पे हम कितना प्लस करेंगे, -5 ही आए तो यहाँ पे आएगा आपका 0. इसके बाद देखिए 7 प्लस -3 प्लस 4, यहाँ पे आपका आ गया 7 प्लस -3 और आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4. देन 9 में आप कितना ऐड करेंगे कि आपको 9 नहीं मिले, देन 0. ओके, नेक्स्ट ई पार्ट है 4 प्लस -11. अब आपको राइट साइड -11 दे रखा है तो आपका ये क्या है 4. ओके, आपको इनकी प्रॉपर्टी के नाम लिखेंगे, आप खुद से बताएंगे कि ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है या फिर एडिटिव आइडेंटिटी है या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड 36 माइनस -64 एंड -64 माइनस 36 आर द रिजल्ट्स इक्वल और नॉट. देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है. चलिए देखते हैं. आपके पास आपको क्या करना है, 36 माइनस -64 एंड दूसरा आपको क्या करना है -64 माइनस 36. क्या दोनों के आंसर सेम आएंगी, क्या इनके रिजल्ट्स इक्वल होंगे? चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले 36 प्लस 64, ये आपका आ गया 100. ओके, नाउ -64 माइनस 36 माइनस 100, क्या दोनों सेम आए हैं? तो रिजल्ट्स आर नॉट सेम, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर आया तो एक नेगेटिव इंटीजर आया. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सॉल्व बाय सूटेबल ग्रुपिंग. अब हमें इनको सॉल्व तो करना है बट ग्रुपिंग सूटेबल होनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सो ये क्वेश्चन इज 107 प्लस 34 प्लस 66 प्लस 13. देखिए सूटेबल ग्रुपिंग कैसे होगी, आप कोशिश करेंगे कि आपका प्लस करने पे 10, 100, 1000 इस तरह से आए. तो देखिए कैसे आएगा. 10, 7 प्लस 3 10 होता है, 4 प्लस 6 10 होता है. तो आप 107 में पहले 13 प्लस करेंगे एंड इन दोनों की ग्रुपिंग अलग हो जाएगी. ओके, 7 प्लस 3 10, ये आपका हो गया 120 प्लस 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 और अब आपका ये हो जाएगा 220. ओके, तो आपको इसी तरह से ग्रुपिंग करनी है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट. इसमें क्या करना है आपको.
253 plus 5 plus 85 plus minus 243. अब देखिए आप इसे किस तरह से ग्रुप करेंगे, आप इन दोनों को साथ में रखेंगे बिकॉज 5 plus 5 is 10 एंड इस नंबर को और इस नंबर को साथ में रखेंगे तो 253 प्लस माइनस 243 प्लस 5 प्लस 85, 253 माइनस 243 प्लस 90. 253 में से 243 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10 प्लस 90 एंड 100 इज द आंसर. ओके चिल्ड्रन, बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं, आपको सूटेबल अरेंजमेंट इनका करना है. Now multiplication of integers, multiplication of two integers. To multiply two integers, we apply the following rules. Rule number 1, if the integers are given with unlike signs, find the product of their magnitudes regardless of their sign and give a minus sign to the product. Rule number 2, if the integers are given with same sign, find the product of their magnitudes regardless of their sign and give a plus sign to the product. जब कभी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दो अगर अलग अलग साइंस होंगे, सबसे पहले आप उसे मल्टीप्लाई कीजिए, दो अलग अलग साइन हैं तो आप माइनस आंसर देंगे, और अगर दोनों साइन सेम हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव में है चाहे दोनों नेगेटिव में है, तो जब आप मल्टीप्लाई करके आंसर जो लिखेंगे वो हमेशा आपका पॉजिटिव में होगा. तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले है -6 and 4 का प्रोडक्ट, 4 इंटू -6, 4 6 है 24, दोनों अलग अलग साइंस है तो आपका आ जाएगा नेगेटिव में. इसी तरह से आपका देखिए इनमें सब में नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दो अलग अलग साइंस है तो नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए -8 इंटू -4, 8 4 ज़ा 32, दोनों आपके साइन सेम है तो पॉजिटिव साइन आएगा. ओके ये तो आपका पॉजिटिव आएगा ही. इसमें भी देखिए -70 इंटू -28, आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर जो है आप लास्ट में लिखेंगे पॉजिटिव में, राइट. Multiplication of more than two integers. To multiply a series of integers, we find the product of all the integers and count the number of negative integers and apply the following rules. अभी तो हमने बात की कि हम जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें दो से ज़्यादा करना है या सीरीज एक मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं. सबसे पहले if the number of negative integers is odd, then the product will be negative. If the number of negative integers is even, then the product will be positive. आपको सिर्फ नेगेटिव इंटीजर काउंट करने हैं. अगर वो आते हैं ऑड नंबर में तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव में, अगर वो आते हैं इवन नंबर में तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में. चलिए ये जानते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू. देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. 1 -1 इंटू -2 इंटू 4 इंटू -3. सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे. 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. ओके आंसर आया 24. अब आपको कौन सा साइन लगाना है, आप नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करेंगे. 1 2 3, सो देयर आर 3 नेगेटिव साइंस. ओके तो 3 आपका ऑड नंबर होता है तो इसके आगे आपका नेगेटिव आ जाएगा. इसी तरह से आपका सेकंड है. देखिए आपको कितने सारे 6 इंटीजर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5, 5 अगेन आपका क्या है, आपका ऑड नंबर है तो इसमें आपका जब आप माइनस मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो आंसर माइनस में आएगा. ओके चिल्ड्रन, तो ये इसी तरह से आपके सारे होंगे. अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए इंटू बी विल ऑल्सो बी एन इंटीजर. For example, -3 and 4 are two integers, then -3 and 4 is equals to -12 is also an integer. Closure property का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो integers हैं a into b, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर रहेगा. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ a and b are two integers, then a into b is equals to b into a. जैसे आपका एडिशन में था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन भी है कि a into b, आपका दो नंबर्स है आपके a into b इज इक्वल्स टू बी इंटू ए हो जाएगा. जैसे कि देखिए 5 को अगर आप -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आंसर आएगा, और -8 को 5 से करेंगे तो भी आपका 40 आएगा. दस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स, देन आपका क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी. आप a उसके बाद b इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में आप पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे फिर c से. दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम होगा. दस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव. एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इफ a इज एन एनी इंटीजर देन a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1 इंटू a इज इक्वल्स टू a.
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर सेम रहेगा, या फिर आप 1 को उस इंटीजर से करेंगे तो भी आंसर आपका सेम ही रहेगा. नेक्स्ट इज property of 0. If a is an integer, then a into 0 is equals to 0 and 0 into a is equals to 0. किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर विल बी 0 ऑलवेज. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इफ a, b and c are 3 integers, then आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है, a इंटू बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगी, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके, और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी. ओके, सो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की और ये है आपकी सब्ट्रैक्शन की. सो multiplication of integers is distributive over addition and multiplication of integers is distributive over subtraction. Now multiplicative inverse. Multiplicative inverse of a non-zero integer a is 1 by a, as a into 1 by a is equals to 1. For example, 8 is an integer. Then देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास इंटीजर है, जैसे माना 8 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज 1 by 8. 1 by 8 क्योंकि 8 इंटू 1 by 8 आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. चलिए 5 इंटू 8 40 एंड साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस साइन को काउंट करेंगे तो 1 है. इसी तरह से 40 और 62 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 40 इंटू 62, तो आपका आंसर देखिए माइनस में आएगा. क्यों, क्योंकि देयर इज 1 माइनस साइन एंड 1 इज ऑड नंबर. सो 4 2 8, 4 6 24, दिस विल बी द आंसर. इसके बाद देखिए डी पार्ट देखते हैं, माइनस 25 इंटू माइनस 22. अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले 25 टू ज़ा 50, 5 कैरी, 25 टू ज़ा 50 प्लस 5 55. ओके, अब आप ये देखिए माइनस एंड माइनस, हाउ मेनी माइनस आर देयर, 2 एंड 2 इज एन इवन नंबर, तो इसमें आपका जो साइन है वो आपका होगा पॉजिटिव. ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स. माइनस 18 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 और आपके पास यहाँ पे मिसिंग कितना है, माइनस 18. 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 ही आएगा, 1. माइनस 7 इंटू 4 इंटू माइनस 5. अब आप राइट साइड देखिए कौन सा नंबर मिसिंग है, 4 भी है, माइनस 5 भी है, तो माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा. माइनस 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 ही रहेगा. ओके, एंड 1000 को आप 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा. ओके चिल्ड्रन, बाकी आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है. अब आप देखिए माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1. ओके, ये आपका 4 3 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12. 1 2 3, 3 माइनस है, ऑड में है तो माइनस आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका, अच्छा देखिए 4 इंटू 3 इंटू 1, ये भी 12 ही रहेगा, है ना, बट इसमें पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही माइनस है, यानी कि ये नंबर आपका बड़ा होगा. ओके, इसे भी आपने इसी तरह से करना है. जो बी पार्ट है आपका, देखिए 2 5 ज़ा 10 एंड 10 7 ज़ा 70. ओके, माइनस माइनस 2 माइनस है, इवन है तो प्लस ही रहेगा. इसी तरह से 1 5 ज़ा 5, 5 4 8 ज़ा 40, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर. ओके चिल्ड्रन, बाकी आप सेम है, इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे. Division of integers, we know that division is an inverse process of multiplication. See, we follow the given rules for division of integers. आपको पता है division multiplication का just inverse होता है. तो कुछ rules हैं इसमें, देखिए, if both the dividend on the divisor are of same sign, then on dividing the quotient will always be a positive integer. If both the dividend and the divisor are of different signs, then on dividing the quotient will always be a negative integer. इसमें क्या होगा कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों अगर सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव इंटीजर होगा क्वोशंट. ओके, और अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही डिफरेंट साइंस के हैं तो डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा वो आपका नेगेटिव होगा. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. माइनस 54 डिवाइडेड बाय माइनस 9. ओके, जब आप 54 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा कितना, 6.
क्योंकि दोनों साइन आपके सेम हैं तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में ही आएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 देखते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स, -48 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 बट -16, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है और इसमें पॉजिटिव साइन है, यानी दो अलग अलग साइंस है तो आपका नेगेटिव में आएगा। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइडेड बाय मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि ए और बी आपके दो इंटीजर हैं पर उसमें b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब हम a और b को डिवाइड करते हैं तो वो या तो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ -30 एंड 6 आर टू इंटीजर्स देन -30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -5 इज एन इंटीजर। बट देखिए, जब आपने -30 को 6 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया -5, ये तो इंटीजर है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि इंटीजर नहीं भी हो सकता है? तो चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। -9 एंड 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये फ्रैक्शन है, इसीलिए ये कहा गया है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ओके, जैसे आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। ओके, सो डिविजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स देन, देखिए आपके पास 3 इंटीजर्स हैं तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। Fourth, division by 1. If a is an integer, then a divided by 1 is equals to a और a divided by -1 is equals to -a। देखिए, अगर आप किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं 1 से तो वो इंटीजर आपका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है डिविजन बाय 0। डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। देखिए, अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिफाइन कर रहे हैं तो वो डिफाइंड नहीं है, दैट इज इट इज मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस है। If a is any integer and a is not equals to 0, then a divided by 0 is not defined। हमेशा याद रखिएगा कि 0 से आप किसी भी नंबर को नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि मीनिंगफुल है ही नहीं। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द कोशेंट। देखिए, -120 को आप डिवाइड करेंगे -4 से तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 120, आपका आंसर होगा 30, पॉजिटिव 30। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट इज -343 डिवाइडेड बाय 7। आपका आंसर सबसे पहले तो मैं बता दूं माइनस में आएगा बिकॉज देयर इज ओनली 1 नेगेटिव। ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं तो 7 से कटेगा ये। 7 4 28, आपका रिमाइंडर बचेगा 6, 7 9 63। ओके चिल्ड्रन, आपको यह सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। आपको मैं ई पार्ट बता देती हूँ। -10 + 10 डिवाइडेड बाय 0। अब -10 + 10 तो 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b वेरीफाई a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। चलिए, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। a की वैल्यू है आपके पास -5 एंड b की वैल्यू आपके पास -1। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, -5 डिवाइडेड बाय -1। तो -5 को जब आप डिवाइड करेंगे -1 से तो आपका आंसर आएगा 5 प्लस का 5। ओके, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, b डिवाइडेड बाय यानी -1 को डिवाइड करना है -5 से, तो -1 को -5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/5। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, सारे ही पार्ट्स आपको इसी तरह से करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 डिवाइडेड बाय 15 इज 0। -24 को हम किससे डिवाइड करेंगे? -8 आए 3 से।
ओके दूसरी ट्रिक क्या है कि आप इस नंबर, आपको नहीं पता, चलो आपको नहीं पता कि किससे डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है 123 ने किसको डिवाइड किया कि आपका आंसर जो है -3 आया। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए माइनस में, यानी कि आपका जो मल्टीप्लाई जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसे आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज -1 ने किसको डिवाइड किया कि -48 आया। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इसमें नहीं आएगा, ये 48 हो जाएगा। ओके अब बाकी के क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने हैं। चलिए ओवरव्यू, कंबाइंड सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि उसमें नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स सारे ही इंक्लूडेड है। 0 इज एन इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। The absolute value of an integer is the numerical value of an integer regardless of its sign. किसी भी इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक्चुअल में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। An integer represented to the right of any integer on number line is greater than left of any integer. आपके जो right side integers होंगे वो left side वाले integer से हमेशा बड़े होंगे। If two integers having different signs are added, then first find the difference of their absolute values and assign the sign of the integer having greater absolute value. अगर दो integers जिनके different signs हैं वो add किए जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी absolute values का आप difference निकालेंगे और उसके बाद जिस नंबर की ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू है आप उसका साइन उसमें लगाएंगे। इफ टू इंटीजर्स आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड देन चेंज द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स एंड देन सिंपली ऐड टू द इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले जो इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको आप उसकी एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सिंपली उन टू इंटीजर्स को आप प्लस कर देंगे। The product of two integers with same sign is positive and the two integers with unlike signs is positive. जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो इंटीजर्स अगर सेम साइन के हैं तो आंसर पॉजिटिव होगा, बट दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर इज a is 1 by a as a into 1a is equals to 1। किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे a है तो हो जाएगा 1 by a। When integers with same sign are divided, the quotient is positive, and when integers with different signs are divided, the quotient is negative. जब आप डिवाइड करें दो इंटीजर्स को जिनका सेम साइन है तो क्वोशंट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और दोनों साइन अगर डिफरेंट है देन आंसर क्वोशंट आपका नेगेटिव होगा। डिविजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड एंड रिमेंबर दैट जीरो से डिविजन इज मीनिंगलेस एंड इज नॉट डिफाइंड। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।